Hello, today we will study about human settlements. In human settlement, we will firstly study rural-urban dichotomy, then types and patterns of settlement, and then specifically about rural settlement, defining what are the factors that are affecting rural settlement, what are the patterns that exhibit in rural settlement, then problems of rural settlement. The same way we will study about urban settlements, its classification, location, function, types, and then the problems. So, human settlement. What is settlement? Any type of settlement. What is settlement? There are places which are inhabited by people, and there are certain places that are very sparsely or lessly preferred by people to inhabit. So, there are certain places where people live. So, they form a cluster where people live, it form a cluster, and then altogether it makes the settlement. It may be rural or urban. If we talk about rural, then we are simply indicating the settlement which is in villages. So, rural settlement links to village, and when we are talking about urban settlement, then it links to towns. So, what are the patterns that exhibit in rural and urban is basically based on that it is a village. So, the conditions that are affects people in villages will be the conditions that will be affecting rural settlement, and the things which are available in towns and what are the conditions, those will be affecting the urban settlement. So, study of human settlement is basic to human geography. Here we are saying that human settlement is basic to human geography. Why so? Because the reason is that human settlement represent the relationship which exhibit between the people living in a particular area and its surroundings, or we can say environment. यहाँ हमने बात करी थी कि ह्यूमन सेटलमेंट बेसिक है ह्यूमन ज्योग्राफी में. द स्टडी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इज बेसिक टू ह्यूमन ज्योग्राफी. बट व्हाई settlement is so basic study in human geography? The reason is this: because human settlement represents the relationship of which exhibit between the people living in a particular area and its surroundings or environment. Human settlement
ये बताता है कि जो लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं वो और उनके एनवायरनमेंट के बीच कैसा रिलेशन है, बिकॉज जैसा एनवायरनमेंट कंडीशन होगा उसी तरह का सेटलमेंट होगा। या फॉर एग्जांपल अगर सराउंडिंग्स बहुत कोल्ड हैं तो मे बी वहाँ बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं रहना, जहाँ अच्छा सराउंडिंग है, मॉडरेट क्लाइमेट है, वहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं। और बहुत सारी दूसरी भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करती हैं सेटलमेंट को, वो हम फैक्टर्स में पढ़ेंगे। बट हमने यहाँ बेसिक इसलिए कहा क्योंकि इससे पता चलता है कि लोगों में और एनवायरनमेंट के बीच क्या रिलेशन है, उसी से सेटलमेंट का पता चलेगा। There is a thing that settlements, when we are seeing settlements, they are more or less permanent. Generally, when we study about the settlement patterns, they are permanent. There are certain settlements which may be temporary, but when we are talking about human settlements and we are studying them in detail, then we take permanent settlements for our consideration. So settlements are more or less permanent. It's not like today somebody is living here and tomorrow they are migrating to some other place, then it will make difficult कि उसको एग्जामिन कैसे किया जाए। इसीलिए हम जनरली परमानेंट सेटलमेंट्स की स्टडी करते हैं, तभी हम कहते हैं सेटलमेंट्स आर मोर और लेस परमानेंट। In this settlements may be redesigned or moderated, but they remains the permanent one. So when we are talking about settlement, हमने अभी बात की थी कि वो permanent होते हैं, भले वो redesign हो सकते हैं, उन्हें दोबारा बनाया जा सकता है, उन्हें plan किया जा सकता है, but वो permanent settlement ही रहते हैं। रूरल अर्बन डायकोटमी, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि रूरल एरिया को अर्बन एरिया से किस तरह डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। जितना हमें पता है कि रूरल अर्बन से रिलेटेड है, क्योंकि जो अर्बन है उसका ऑपोजिट ही रूरल है, बट किसे हम अर्बन कहते हैं या किसे हम रूरल कहते हैं और उसके ऑपोजिट में किन टर्म्स एंड कंडीशंस को रखते हैं, तो वो हमें रूरल अर्बन में पता चलेगा। कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि यहाँ पे हमने तीन चीज़ें कंसीडर करी हैं, पॉपुलेशन साइज, ऑक्यूपेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड फंक्शंस। जब हम रूरल या अर्बन को डिस्टिंग्विश करते हैं, हम जनरली इन फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंट्री सेम क्राइटेरिया अप्लाई करे अपना रूरल से अर्बन को डिस्टिंग्विश करने के लिए।
फॉर एग्जाम्पल कहीं पॉपुलेशन साइज हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन साइज़ की। यहाँ हमने कहा कि पॉपुलेशन साइज़ तो वरी कर सकता है। कोई कंट्री कह सकती है कि जहाँ 1500 पीपल रहते हों वो अर्बन एरिया है, कोई कह सकता है 30,000 है वो अर्बन एरिया है। इसलिए ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि वो पॉपुलेशन साइज़ कितना रखती है अर्बन से रूरल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अर्बन को रूरल से एक जनरल जो हम किसी वर्ल्ड लेवल पे कर सकें, इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि सभी कंट्रीज़ का अपना क्राइटेरिया है रूरल से अर्बन को डिस्टिंग्विश करने का। फिर बात आती है ऑक्यूपेशन। जब हमने पॉपुलेशन साइज़ की बात करी तो हमें ये भी पता चला कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जितनी पॉपुलेशन विलेजेस में है उससे कम डेवलप्ड कंट्रीज़ के अर्बन एरियाज़ में है। तो हम इसे वर्ल्ड लेवल पे कंपेयर नहीं कर सकते, एक सिंपल क्राइटेरिया नहीं रख सकते पॉपुलेशन का। ये सिर्फ कंट्री टू कंट्री डिफ़र करता है कि लोग अपने यहाँ अर्बन को डिफ़ाइन करने के लिए क्या पॉपुलेशन साइज़ रखते हैं, उनकी क्या लिमिट है कि इतने लोग अर्बन एरियाज़ में रहने चाहिए। फिर बात आती है ऑक्यूपेशन की। यहाँ पे हम कहते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ रूरल एरिया में होती हैं और सेकेंडरी या टर्शरी एक्टिविटीज़ अर्बन एरिया में। मतलब रूरल एरियाज़ में लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एंगेज हैं और अर्बन एरियाज़ में सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एंगेज हैं। बट कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे लोग अर्बन एरिया में रहते हुए प्राइमरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं और रूरल एरिया में जनरली अर्बन एरिया में रह के प्राइमरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो हम इसको भी ये नहीं कह सकते कि दिस इज़ द ओनली फैक्टर on the basis of which we could distinguish rural and urban. तो ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल जनरली हम कहते हैं रूरल एक्टिविटीज़, रूरल एरियाज़ वो हैं जहाँ प्राइमरी एक्टिविटीज़ में लोग एंगेज हैं और अर्बन एरियाज़ वो हैं जहाँ सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़ में लोग एंगेज्ड हैं। बट कुछ कंडीशंस और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ द केस रिवर्स। सो हम इसे एक बेसिस नहीं ले सकते वर्ल्ड लेवल पे रूरल और अर्बन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। दिस वॉज अबाउट ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। नाउ फंक्शन। जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो कोई भी पर्टिकुलर एरिया डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है, दैट इज़ लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग, दीज टाइप ऑफ फंक्शंस, और वी कैन से fishing, mining, quarrying. These are the different types of functions a particular area that may be rural or urban can perform. अब फंक्शंस के बेसिस पे हम नहीं कह सकते दिस इज़ अर्बन और रूरल, बिकॉज इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लोकेशन, कि अगर उस लोकेशन में कोई पर्टिकुलर मिनरल पाया जा रहा है तो ऑब्वियस है कि वहाँ के लोग माइनिंग में इंगेज्ड होंगे। एंड दूसरी बात आती है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल, जब हम फंक्शन की ही बात कर रहे हैं तो पेट्रोल पंप्स
कुछ कंट्रीज में एक लो ऑर्डर एक्टिविटी है, लो ऑर्डर एक्टिविटी है पेट्रोल पंप्स, एंड इन इंडिया इट इज एन अर्बन एरिया एक्टिविटी। अर्बन एरियाज में पेट्रोल पंप्स इन कंपैरिजन ज़्यादा मिलेंगे इफ़ वी कंपेयर इट टू रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। सो वी कैन नॉट से particularly or generalize a particular distinction between rural and urban on the basis of population size, occupation of population and the functions they perform. Population size किसी भी particular country के लिए differ कर सकता है कि वो अपनी urban population कितनी है, जिससे वो कह सकते हैं कि ये area urban है। वो differ करता है country to country। ऑक्यूपेशन भी डिफर करता है कंट्री टू कंट्री, एंड फंक्शंस जो कहीं लो ऑर्डर हैं वो कहीं हाई ऑर्डर एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। ये था